Welcome to the lecture of spleen. Spleen is an organ also known as graveyard of RBC. It is a hemopoietic organ which forms in the early stage in the developing embryo. The blood cells known as RBCs and some lymphocytes. It is a hemo lymph organ and belongs to reticuloendothelial system. It is the second lymphoid organ which forms the lymphatics or lymphatic tissue. It is also known as lymphatic tissue. So it forms lymphocytes and also forms the important immune system cells IgG, and the pleural cavity which separates the spleen and diaphragm from the rib. So pleural cavity means pleura, which costo diaphragmatic recesses of the pleura between the costal margins and diaphragm. There is a recess or extension of the pleura cavity or pleural cavity which separates the spleen from the diaph- diaphragm and from the ribs. Then the function of the spleen is to forms the part of reticuloendothelial system, and its main function is to hemopoiesis. Hemopoiesis, the formation of the blood in the fetal life. In the fetal life, in the embryonic stage, in the fetal stage, within the intrauterine development, it forms the blood cells. And in adults, with reutilization of iron from hemoglobin of destroyed red blood cells. That's why uh, it is also known as graveyard of RBC, where the RBC are destroyed, and from the RBC, which the hemoglobin is reutilized by this spleen. It has red and the white pulp. When we see its tissue, its cells under the microscope, we will see collections of the lymphoid cells in in circular area in the form of circular shape. Two types of the cells which is arranged in the circular pattern known as red and the white pulp, which are separated by the marginal sinus. When we go for the histology, we will definitely see it. Functions: the spleen, the which shows the red pulp, composed sinuses, splenic cords, marginal zone, main function to filter red blood cells and reserve the monocytes. White pulp is composed of Malpighian corpuscles and help in active immune responses. Now, position of the spleen, as you know, this area of the abdomen is known as left hypochondriac region. Here, the epigastric, and here on the left side where the liver is situated is known as left right hypogastric. So the spleen is situated in the left hypogastric, while the liver is situated in the right hypogastric state. And this organ is known as stomach, which lies between the our liver in front and spleen behind. Okay, so this stomach lies between the liver and the spleen. Now it lies between fundus of the stomach and the diaphragm. The spleen, we are talking about the spleen, so it is situated between the fundus. This part of this stomach is known as fundus,
of the stomach, and behind there is diaphragm, and behind diaphragm there is the ninth, 10th, 11th ribs. Okay, ninth, 10th, 11th ribs, and along with pleura. This one is the pleura, costopleural recess, costodiaphragmatic recess of the pleural cavity here on the left side. It lies in right, left hypochondriac and epigastric region also. It slightly occupies the epigastric region where the stomach is situated also. Just front of it. Extend from the ninth to 10th ribs. Means above from ninth below up to the 10th ribs is extend. Okay. Here we can see the white pulp and the red pulp. Okay. Now some important structures which hold the spleen in situ in the situation of the adult in our body. How the spleen is situated, here you can see this one is the spleen. Okay, and here this muscular appendage is the diaphragm. So it is situated, and in front of the spleen there is the fundus of the stomach. So here in between the fundus of the stomach and the diaphragm, and here the spleen is situated. You can see the spleen. Below it there is colic fracture. It is known as the colic fracture. It is the angle between the transverse colon here, transverse colon. It is transverse colon covered by this peritoneum layer known as greater omentum. Okay, when we uh, remove this greater omentum, we can see this colon extend from right to left to right here like this, and here it runs continuous downward, making an angle here on the left side, and continues downward and become now this colon is known as continuous with as descending colon. So this is the angle between the transverse and the descending colon, and this angle is known as left colic flexure. You can see this one is the greater omentum, the yellow layer which is attached from the greater curvature of the stomach, and here you can see that this is another layer of peritoneum extension between the liver and the laser curvature or small border, that is the right border of the stomach, also known as laser curvature. लेजर कर्वेचर से लीवर के बीच में भी है, it is the hepatogastric ligament. Hepatogastric ligament is the part of the laser omentum. Okay, so this is the laser omentum also. Laser omentum actually is divided into two. Laser omentum is the part of the laser omentum between the liver and the stomach is known as hepatogastric. This is the hepatogastric, and the part of the laser omentum between the, what is this? This is the pylorus. Okay, and between the pylorus, or as you can see, as you can say, the first part of the duodenum here. This one is the duodenum, first part of the duodenum and the pylorus. So here the between the junction of the pylorus and the first part of the duodenum, which is attached with the liver by this, the part of the laser omentum known as hepatoduodenal ligament of the laser omentum. Okay, so today's we are topic on the spleen. So spleen is lies between the stomach and the diaphragm, and here you can see this space between the ninth, 10th and 11th ribs, and between the diaphragm it is the recess. It is known as costodiaphragmatic recess. So costodiaphragmatic recess separates the uh, separates and costodiaphragmatic जो recess है along with diaphragm separate the spleen from this 9th, 10th and 11th and intercostal space between them. Okay, so this one is the spleen. The axis of the spleen
is directed downward. This one is the axis from before behind, and axis of the spleen is directed downward, backward, forward and laterally. Laterally means लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में डेविएट होगा और डाउनवर्ड होगा और फॉरवर्ड होगा. एंड इसकी जो लॉन्ग एक्सिस है इज द पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द 10th रिब. ओके, ये इसकी जो लॉन्ग एक्सिस सबसे यानी लंबी जितना भी इसकी लंबाई है मैक्सिमम, जो इसकी बिटवीन लॉन्ग एक्सिस जिसको हम कहते हैं, वो किसके पैरेलल होगा? 10th रिब के पैरेलल होगा. ठीक है. नाउ मेजरमेंट ऑफ द स्प्लीन. Length is 12 centimeter, also known as 5 inch. Width is 7 centimeter, 3 inch. Thickness is 3 centimeter or 1 inch. And weight is 150 gram or 7 oz. Okay. And here ये dictum of the odd number on spleen. मतलब आपको ये odd number से समझ में आ सकता है 1, 3, 5, 7, 9, 11. ओके, तो आपका 3 इंच थिकनेस हो गया, 5 इंच लेंथ हो गया, 7 इंच आपके हो गया, 7 ओज जिसको हम कह सकते हैं, ओज नहीं, लिंच नहीं कहेंगे, ओज कहेंगे. 7 ओज इज द वेट. एंड 9, 10th, 11th जो है ये रिलेटेड होता है. ठीक है, किससे? रिब्स से रिलेटेड होता है 9 to 11th. तो 1 इंच फॉर द थिकनेस. ओके, जिस ओके, जो कि 3 सेंटीमीटर की होती है. And 3 inch for the width, 5 inch for the length, 7 oz for the weight, 9 to 11 tenth, यानी 9, 10th, 11th ribs to the left side against which the spleen rest. The broad और इसके width है 7 centimeter, height है 12 and anterior posterior यानी axis है इसका 3 to 4 centimeter. 150 ग्राम इसका weight है, 7 oz, 80 to 300 ग्राम्स इसकी रेंज होती है. नाउ द हाइलम क्या है? हाइलम वो एरिया है स्प्लीन का जहां से स्प्लीन पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होती है. बाकी जगह पर स्प्लीन जो है पेरिटोनियम से कवर्ड है. ठीक है, आपको ये एरिया जब दिखाई दिया है तो यहाँ पर ये जो ग्रेटर ओमेंटम है इसको कवर करके रखता है. ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम कवर करता है, साथ में मेनली जो कवर करता है एक लिगामेंट कवर करता है इसको यहाँ सामने से, जो कि इससे यानी कि जिसको हम कह रहे हैं लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर से ऊपर की तरफ जाता है और डायफ्राम की तरफ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट. ठीक है, फ्रेनिक से लेकर के यानी कि डायफ्राम से लेकर के और कॉलिक फ्लेक्सर तक एक लिगामेंट जाएगा जो इसको सपोर्ट करेगा आगे की तरफ से. ठीक है, उसको ओपन करते ही हमको स्प्लीन दिख जाता है. स्प्लीन जो है ऊपर साइड से और ऑल अराउंड साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड है, बस एक ही जगह से जो कि इसकी इनर सरफेस पे या विसरल सरफेस पे है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हाइलम. एंड हाइलम इज द रीजन वेयर द स्प्लीनिक वेसल्स गोस inside and outside from the spleen. Now the external features of the spleen are it has 2 hands, 3 borders, 2 surfaces, 2 angles and hilum. Anterior end or also known as lateral end, it is expanded and more like a border. ये बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड होता है और एक बॉर्डर की तरह होता है. तो एंड हमको समझ में नहीं आएगा, हमको एंड ऐसा दिखेगा सिर्फ बॉर्डर की तरह, यानी एक्सपेंडेड होगा एंड डायरेक्टेड होगा डाउनवर्ड, फॉरवर्ड and towards the left mid axillary line, just behind the left mid axillary line. Okay, and it faces towards the left side. The posterior or medial end जिसको हम कह सकते हैं, it is rounded क्योंकि medial side में होता है, medial end कहते हैं. It's rounded and directed backward and upward and medially, not so much medially, perfect medially नहीं होगा लेकिन ये स्लाइटली मीडियली होगा. तो हम कह सकते हैं कि स्प्लीन थोड़ा जो है ऑब्लिकली प्लेस्ड है बॉडी के अंदर और आगे से पीछे की ओर जो है इसका जो है वो
पीछे वाला जो एंड है इसका अबव होता है और एंटीरियर जो एंड है उसका लोअर होता है, ठीक है। तो एंटीरियर एंड इज लोअर देन द पोस्टीरियर एंड। सो नेक्स्ट, द टू बॉर्डर्स, द सुपीरियर बॉर्डर प्रेजेंट वन और टू नोचेस। सुपीरियर बॉर्डर को हमेशा पहचानेंगे तीन नोचेस से, या तो दो होगी या तीन नोचेस होंगी, जो कि इसके एंटीरियर एंड के पास में होगी। और नोचेस जो इंडिकेट करती हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं कि जब स्प्लीन का डेवलपमेंट हुआ था तब स्प्लीन जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड होकर के एक दूसरे से फ्यूज हुई थी। तीन पार्ट्स यानी कि लिम्फोइड टिश्यू हम जिसको कह सकते हैं, तो थ्री लिम्फोइड सेपरेट टिश्यू बने थे, ठीक है। उसकी उसके फ्यूजन की वजह से ये नोचेस रह जाती है। तो फ्यूजन इसी से इंडिकेट, नोचेस जो है इंडिकेट करता है इसका फ्यूजन इन द थ्री टू 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 थ्री पार्ट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ओके। एंड इसको कहते हैं हम लोबुलेटेड डेवलपमेंट। इंफीरियर बॉर्डर एक राउंडेड बॉर्डर है जो कि सेपरेट करेगा डायफ्रामेटिक सरफेस को विसरल सरफेस से, और ऐसे ही सुपीरियर बॉर्डर भी सेपरेट करता है डायफ्रामेटिक को विसरल सरफेस से, ठीक है। नाउ द सरफेसेस आर टू, वन इज डायफ्रामेटिक which related to diaphragm, and visceral which is related to the different organs, okay. So here you can see this is the visceral, and here this surface is known as diaphragmatic, okay. And this broad and extended, this is the anterior end, and this is pointed posterior end, okay. तो एंटीरियर एंड आपका ब्रॉड है, बॉर्डर की तरह है, हम इसको बॉर्डर नहीं कह के एंड कह रहे हैं, ठीक है। ये एंड हो गया आपका। और सुपीरियर बॉर्डर ये वाला है जिसमें आपको तीन नोचेस, 1 2 3 नोचेस आपको दिखाई दे रही है, और इंफीरियर बॉर्डर थोड़ा राउंडेड होता है ये वाला, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, और this one is the anterior end, this one is the posterior end, and here another border is intermediate border between the superior and the inferior border, known as intermediate border, where the hilum is situated. This part is known as hilum, okay, where the splenic vessels and nerves enter and come exit from the spleen, okay. This one is the splenic vein, inferior border, left gastromental or gastroepiploic vessels also run towards this spleen. Left gastro and left gastroepiploic vessels जिसको हम कहते हैं, splenic artery here, splenorenal ligament. Now the ligaments which will be shortly taken, okay. Now surfaces, diaphragmatic surface is the convex and smooth, and it is related to the diaphragm, left lung and its pleura, and costodiaphragmatic recesses of the pleural cavity, and also 9th, 10th, 11th ribs on the left side. The visceral surface is concave and it is irregular also, and concave, and it is related to the fundus of the stomach, the anterior surface of the left kidney, the splenic flexure of the colon, and the tail of the pancreas, okay. So these four structures आपको याद रखनी है, क्या क्या स्ट्रक्चर से है विसरल सरफेस अटैच्ड, फंडस स्टोमक से, लेफ्ट सरफेस की एंटीरियर, लेफ्ट किडनी की एंटीरियर सरफेस से, और कोलोन का स्प्लिनिक फ्लेक्चर से, और पैनक्रियाज की टेल से, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा इंप्रेशन देख लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है। और जब भी स्प्लीन का अगर टॉपिक पे अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रेशन ऑन द विसरल सरफेस, एक्चुअली ये है आपका पोस्टीरियर एंड, ये कर्सर आपका ये दिखा रहा है एंटीरियर एंड, ठीक है। और ये आपकी सुपीरियर बॉर्डर हो गई जहाँ पे 2 से 3 नॉचेस हो गई, और ये हो गई आपकी इंफीरियर बॉर्डर, और ये हो गई आपकी इंटरमीडिएट बॉर्डर, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है
ये एरिया यहाँ से इसके बीच में, इस सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में जो पूरा एरिया है वो है विसरल सरफेस। और विसरल सरफेस को डिवाइड करता है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में ये बॉर्डर, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉनकेव, मोस्ट कॉनकेव जो एरिया है विसरल का, which is situated between the superior border and intermediate border. It is most concave area known as gastric impression. Fundus of the stomach associated with it. ठीक है, फंडस जो है इसके आगे ही होगा, है नहीं। ये जो कॉनकेव एरिया है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, जबकि जो लेस कॉनकेव या फ्लैट एरिया जिसको हम कह सकते हैं बिटवीन द इंफीरियर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर, ये हमेशा नीचे होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है, एनाटॉमिकल पोजीशन आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव एरिया जो है बिटवीन द पार्ट ऑफ द विसरल एरिया विच इज कॉनकेव lies between the superior border and the intermediate border is known as gastric impression, is the impression for gastric fundus of the stomach. And renal impression is the part of the visceral surface between the intermediate and the inferior border is known as renal impression, and it is related to the anterior surface of the left kidney. Now the triangular area, this is the triangular area, आपको जो साफ साफ दिखाई दे रहा है एक triangular area है। ओके, lateral end यानी कि एंटीरियर एंड के जस्ट बिहाइंड में और मीडियल साइड में आपको एक ट्रायंगुलर एरिया दिखाई देगा। ठीक है, बिटवीन द टू एंगल्स। हमने एंगल्स की बात पे यहाँ पे नहीं करी, एंगल्स की बात कर लेते हैं पहले। इसको हम कभी कभी एंगल्स भी कह देते हैं, कोई कोई ऑथर जो है इसको एंगल्स भी कहता है। ठीक है, तो ये एंटीरियर बेजल और ये पोस्टीरियर बेजल एंगल। ठीक है, तो दो एंगल हो गए, दो बेजल एंगल हो गए एंटीरियर बेजल और पोस्टीरियर बेजल एंगल के बीच में, और जस्ट एंटीरियर एंड के पीछे एक ट्रायंगुलर एरिया है। ये ट्रायंगुलर एरिया थोड़ा डाउनवर्डली और एंटीरियरली साइड होता है। तो ये एरिया सब किससे रिलेटेड है? कॉलिक फ्रैक्चर से। राइट, कॉलिक फ्रैक्चर जैसे कि आपको मैंने दिखाया है, ये आपको कॉलिक सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ट्रायंगुलर एरिया है। ठीक है, ये राइट कॉलिक और स्प्लेनिक फ्रैक्चर जिसको हम कह रहे हैं, ये आपका ट्रायंगुलर एरिया कॉलिक इंप्रेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर ये कॉलिक इंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, और इसको जैसे फंडस को हटाएंगे तो यहाँ पे कॉनकेव एरिया आ जाएगा स्प्लीन का। ठीक है, और पीछे जो है स्प्लीन होती है। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की पार्ट है स्प्लीन, तो पोस्टीरियरली स्प्लीन होगी इसके। ठीक है, और सम कॉलिक इंप्रेशन के बाद एक टैल होती है, पेनक्रियास की टैल होती है, जो इसके हाइलम के जस्ट इंफीरियर पार्ट पे होती है। यहाँ पर होती है आपका पेनक्रियाटिक टैल इंप्रेशन। ठीक है, यहाँ हाइलम के जस्ट बिलो। ओके, दो एंगल एंटीरो बेजल पोस्टीरियो बेजल होगा। ठीक है, एंटीरो बेजल एंगल जंक्शन है ऑफ सुपीरियर बॉर्डर विद द लेटरल और एंटीरियर एंड, and it lies in the ninth intercostal space behind left mid axillary line and first palpable in the splenomegaly. इसको क्लिनिकल एंगल भी कहते हैं, क्योंकि क्लिनिशियन जब भी स्प्लीनोमेगेली यानी कि स्प्लीन का एनलार्जमेंट होना किसी भी कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में जब बढ़ती है, तो इस एंगल को पाल्पेट किया जाता है। नॉर्मली नॉर्मल स्प्लीन जो है पाल्पेट नहीं हो सकती, लेकिन स्प्लीनोमेगेली की कंडीशन में इसका जो एंटीरियर बेजल एंगल है वो पाल्पेट होता है, इसलिए हम इसको क्लिनिकल एंगल कहते हैं। पोस्टीरियर बेजल एंगल लाइज करता है एट द जंक्शन ऑफ इंफीरियर बॉर्डर एंड द लेटरल और एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन में। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द स्प्लीन। ठीक है, राइट, ये पोस्टीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड है,
ठीक है। एंटीरियर एंड झुका हुआ फॉरवर्डली एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड में है, और पोस्टीरियर एंड बैकवर्ड एंड अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, बैकवर्डली है, और टूवर्ड्स द मीडियल साइड। ठीक है। और अंदर की तरफ जो है विसरल हो जाएगी और बाहर की तरफ डायफ्रामेटिक सरफेस हो जाएगी। ठीक है। और अब बात करते हैं लिगामेंट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 3 लिगामेंट्स होते हैं मेनली, ठीक है, एक होता है गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट, एक होता है लाइनोरीनल लिगामेंट, ठीक है, और एक कभी होते हैं फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट। ठीक है। लिनोफ्रेनिक लिगामेंट भी होता है, ठीक है, वो आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन लिनोफ्रेनिक लिगामेंट भी कह सकते हैं हम। मेनली तो 3 लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है। अब इसके नाम से ही हमको पता पड़ रहा है कि गैस्ट्रो यानी कि स्टोमक और स्प्लीन, स्प्लीन और गैस्ट्रिक स्टोमक के बीच में जो लिगामेंट है वो है आपके गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ठीक है। जैसे ये स्टोमक यहाँ पे ओवरलाई आपका डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसको और कनेक्ट करेगा। ठीक है। ग्रेटर का जो ग्रेटर ओमेंटम का एक पार्ट होता है। ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम जो पोस्टीरियर जो मीजोगैस्ट्रियम है, जैसा कि आपको मैंने डेवलपमेंट में बताया था, ठीक है, पोस्टीरियर मीजोगैस्ट्रियम का जो पार्ट है और डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम जिसको हम कह सकते हैं, वो डिवाइड हो जाता है जब भी स्प्लीन बनती है, तो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो उसका जो एक पार्ट है जो स्टोमक और स्प्लीन के बीच में होता है, इसी को हम गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट कहते हैं। अब इस गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट्स में पूछा जाता है कि भाई क्या कंटेंट हो सकते हैं, तो इसमें जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और वेसल्स, वेन, ठीक है, और कभी कभी मेनली लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स भी होती है, जो कि स्प्लीन को सप्लाई करने के लिए जाती है। ठीक है। स्प्लीन को सप्लाई करने के लिए जाती है, कहां से अराइज होती है, सीलिक ट्रंक से अराइज होती है। ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई कहां से अराइज होती है, सीलिक ट्रंक से अराइज होती है स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी वो आर्टरी है जो मेनली स्टोमक के पीछे बिहाइंडली लार्ज करती है, लाइन करती है। ठीक है। स्प्लेनिक आर्टरी, तो कौन से लिगामेंट में स्प्लेनिक आर्टरी होती है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में होती है। ठीक है। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट यहाँ पर ये अटैच होता है आपका गैस्ट्रिक एरिया है, और गैस्ट्रिक एरिया के जस्ट ये जो हाइलम है, हाइलम के ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट आपका दिखेगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा लिगामेंट है लीनो रीनल लिगामेंट। लाइनो रीनल लिगामेंट जो है रीनल से एसोसिएटेड है। लाइनो तो है आपका स्प्लीन से ही रिलेटेड है, और रीनल आपका हो गया किडनी से। तो पीछे की तरफ एक लिगामेंट रन करता है किडनी से, सॉरी स्प्लीन से किडनी की तरफ, किडनी एक्चुअली पीछे है, तो पीछे की तरफ एक रन करेगा, जहां पर ये इंप्रेशन देगा, ये इंप्रेशन जो है रीनल इंप्रेशन का है। ठीक है। तो लेफ्ट किडनी का जो एंटीरियर सरफेस है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है। तो जैसे लिगामेंट एक जो कनेक्ट करेगा स्प्लीन और लेफ्ट किडनी को, वही लिगामेंट क्या कहलाएगा आपका, लाइनोरीनल लिगामेंट। ठीक है। लाइनोरीनल लिगामेंट ये हो गया। इसके बाद एक होता है फ्रेनिकोकॉलिक, जो कि एंटीरियर एंड को, ये एंटीरियर एंड आपका दिख रहा है, ठीक है, तो एंटीरियर एंड को सपोर्ट करती है। ठीक है। एंटीरियर एंड को सपोर्ट करती है, और कहां से कहां तक रन करती है, कॉलिक फ्लेक्सर से, सॉरी डायफ्राम से अबो, ऊपर की तरफ जो डायफ्राम है अबो, टूवर्ड्स बिलो टू द कॉलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। ठीक है। ठीक है। तो बात करते हैं लिनो फ्रेनिकोकॉलिक हो गया, लिनोफ्रेनिक की। लिनोफ्रेनिक नॉट सो इम्पोर्टेंट, but it is attached from the superior surface towards the diaphragm। ठीक है। तो फ्रेनिको कॉल फ्रेनिको लिनोफ्रेनिक लिगामेंट हो गया आपका। ठीक है। जो फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट है, फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट्स को हम क्या कहते हैं, कैसे कह सकते हैं, सस्टेंटाकुलम लीनिस। सस्टेंटाकुलम लीनिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंटीरियर एंड को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सस्टेंटाकुलम लीनिस क्या है। ठीक है।
जो सस्टेंटेकुलम इज द नथिंग बट द लिगामेंट known as phrenicocholic ligament attached from the diaphragm towards the left colic flexure. Okay, this one, and here is the area for the impression of the tail of the pancreas. Here it is the area for the tail of the pancreas. Okay, it is splenorenal ligament, it is gastrosplenic ligament. ओके, मेनली तो आपको यहाँ हाइलम पे ऊपर और नीचे दो लिगामेंट आपको दिखेंगे. एंटीरियर में फ्रेनिकोकोलिक दिखेगा और सुपीरियर में, सुपीरियर बॉर्डर से फ्रेनिक में फ्रेनिको लीनियर लिगामेंट होगा. Gastrosplenic connect the fundus of the stomach to the anterior lip of the hilum of the spleen, contains zoogastric and left gastroepiploic vessels. And nilorenal ligament connect the anterior surface of the left kidney with the posterior lip of the hilum of the kidney. And it contains the tail of the pancreas. अब ये भी पूछ लिया जाता है कि लीनोरिनल लिगामेंट में कौन सी चीजें होती हैं. एक तो टेल ऑफ द पेनक्रियाज होगा और एक स्प्लेनिक वेसल्स होंगी और नर्व्स होंगी. ठीक है. और जबकि गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में क्या होगा, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और वेसल्स कह सकते हो, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक वेसल्स होती हैं. ठीक है. लिगामेंट्स, लीनोरिफ्रेनिक जो लिगामेंट्स है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहलाता है. स्प्लीन का, स्प्लीन को सस्पेंड करता है अपनी जगह पे. एंड फ्रेनिकोकोलिक जो है एक सपोर्ट लिगामेंट है, इसलिए सपोर्टिव लिगामेंट को हम सस्टेंटाकुलम लीनिस कहते हैं. सपोर्ट्स द स्प्लीन फ्रॉम बिलो. Okay, and peritoneal fold extend from the left colic to the diaphragm. Now the blood supply, इसकी ब्लड सप्लाई स्टोमक के पीछे जो ये टॉर्टुअस जो स्प्लीनिक आर्टरी है जो रन करती है. ठीक है, आपको रन करती हुई दिखाई दे रही है. तो रन करती है आपके लीनोरिनल लिगामेंट के थ्रू. ये स्प्लीनिक आर्टरी इसको सप्लाई करती है. टॉर्टुअस स्प्लीनिक आर्टरी जो कि अराइज करती है सीलिएक ट्रंक से and runs करती है at the upper border of the body and the tail of the pancreas पे. ठीक है, पेनक्रियास पीछे ही होता है स्टोमक के, तो पेनक्रियास के जो अपर बॉर्डर है उससे उसके पैरेलल में रन करती है. ठीक है, और उसके बॉडी के अंदर भी रन करती है कम कम, और टेल ऑफ द पेनक्रियास तक चली जाती है. ठीक है, इसलिए टेल ऑफ द पेनक्रियास भी यहाँ एसोसिएटेड होती है स्प्लीन से. ठीक है, और स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होकर के स्प्लीन को सप्लाई करती है. Short gastric and left gastroepiploic branches passes between the layer of the gastrosplenic ligament. ठीक है, तो ये जो दो आर्टरी हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है. ठीक है, और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, ये वाली आपकी लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी हो गई. ठीक है, ये भी पास करती है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट्स में. गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट्स के दो पार्ट है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर लेयर. टू लेयर्स के बीच में ये रन करती है. ठीक है, और जो मेन स्प्लीनिक आर्टरी है जनरली डिवाइड हो जाती है सुपीरियर इंफीरियर ब्रांचेस में. ठीक है, जो कि वापस से डिवाइड हो सकती है सेगमेंट्स में. ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स में, सेवरल सेगमेंट्स में अंदर जाकर के स्प्लीन में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, और जो वेन है इसका स्प्लीनिक वेन है जो कि स्प्लीनिक आर्टरी के साथ अलोंग रन करती है. स्प्लीन वेन, और स्प्लीनिक वेन जो भी ब्लड लेके आती है, कैरी द ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन टू ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन. Nerve supply is predominantly supplied by the sympathetic nerve fibers arises from the celiac plexus. Celiac plexus से कुछ celiac plexus यानी celiac nerve fibers जो plexus बनाते हैं celiac trunk के आसपास, उसको कहते हैं celiac plexus. ठीक है, उससे sympathetic nerve fibers जो है सप्लाई होते हैं, वो स्प्लीन को सप्लाई करते हैं. और ब्लड वेसल्स जो फाइबर सप्लाई, ब्लड वेसल्स को जो सप्लाई करते हैं वो भी सप्लाई होती है, साथ में स्मूथ मसल्स को भी सप्लाई करते हैं. नाउ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं कि स्प्लीन जो है थोरेसिक केस में कवर्ड होती है, इसलिए पाल्पेट नहीं हो सकती है. लेकिन जब भी किसी कैंसर की कंडीशन में या ब्लड बेस्ड कोई भी कैंसर होता है, ल्यूकेमिया होता है, उस कंडीशन में स्प्लीन बढ़ जाती है. ठीक है, और बढ़ने की वजह से एनलार्ज हो जाती है और ये पाल्पेबल हो जाती है. इसलिए इसका जो एंटीरियर बेजल एंगल है
इसको हम क्लिनिकल एंगल कहते हैं, उसी से पाल्पेट हो जाता है। एस्प्लेनिया होता है स्प्लीन का नहीं होना, ठीक है। और हाइपरस्प्लीनिया होता है स्प्लीन फंक्शंस कम हो जाना। ये है आपकी स्प्लीनोमेगाली इन सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर एंड डिजीजेस। स्प्लीनेक्टोमी रिमूवल ऑफ द spleen. Spleen is particularly liable to rupture in fall and automobile एक्सीडेंट के अंदर फॉल हो जाता है, रप्चर हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है स्प्लीन में। तो ब्लीडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कंट्रोल करना, इसलिए स्प्लीनेक्टोमी करनी पड़ती है, ठीक है। स्प्लीनेक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर दैट पार्शियली और कंप्लीटली रिमूव द स्प्लीन। स्प्लीन को रिमूव करना पड़ता है, पार्शियली भी कर सकते हैं, कंप्लीट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।